ਉਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ। मलक साहब मेरी एक टांग लकड़ी की है। मजनू भाई ने मुझे हॉकी का प्लेयर बना दिया। छो की हो गया जी साहब ना ते असी किसी काफर कोलों किसी फलस्तीनी ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਬੋਲੋ? ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਇਸ ਗੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੇ ਹੀ ਉਹ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗੀ ਆਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਲਾਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰੂਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕੰਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਆ, ਫਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਂਤੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਲਾਂਤੀਆ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ऐसा लफज ना बोलोगे तो भी कोई गलत लफज बोले, ठीक हो गया ना? मुनाफका। ਚਲੋ ਜੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਜਮ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਨਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਈਏ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੈਣ ਕੋ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਮਦਰਸੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਲੋੜੇ ਬਾਜ਼ਾ। ਦੋਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਂਡੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਤੇ ਖਲੀਫੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣ ਨੇ, ਉਧਰ ਲੱਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਮਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਛੱਡੋ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ 2 ਜੂਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਾਸਰ ਨੇ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਖਾਨ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਨਸ ਗਿਆ? ਨਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਡੈਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਜਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿਲ 'ਚ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਰਾਤੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੇਰ ਗਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਤੇ ਤੋਬਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੀ ਪਿਆਲਾ ਸਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਕਵਰ ਦਾ ਤੇ ਲਿਵੋ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਮਨੋਂ ਉਤਾਰ ਦੋ। अमर भाई एक सवाल है, मौजूद हो?
अच्छा, जब मलक भाई बैठे हुए हैं, मलक भाई आपसे मैं वो बात पूछना चाह रहा था, फिर वो उसने बीच में नाक फंसा लिया। मैंने पूछना ये था कि आप अकेले फैमिली में से हम मुसलमान हुए थे या बाकी भी फैमिली को मेंबर मुसलमान हुए हैं? मलक भाई मौजूद हैं आप? ब्रांड मलिक। अच्छा बिजी हैं जी, चलो जी करो जी तुसी गल जिन्हें करनी। ये अकेले ही ज़िया भाई अकेले ही हुए थे, पहले बताया अच्छा था अच्छा मैंने। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी वलीद भाई, आपने कोई बात करनी है? मैं वो ये कह रहा था आमिर भाई कि आप यहाँ पे बैठे हैं, ज़िया रसूल भाई यहाँ पे बैठे हैं, इल्मी शख्सियात बैठी हैं, सवाल जवाब पूछा करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है कि अकबर खान साहब से ये वाली बातें की जाएं जो हो रही थी। बस हो जाता है कभी, देखे ना ये बर्तन भी इकट्ठे रखें तो वो भी टकरा जाते हैं। तो अकबर खान साहब कभी जज्बाती, अगले दिन मुझे भी ऐसे ही कह रहे थे, वो जज्बाती हो जाते हैं तो फिर कभी कभी उनका टायरट खुल जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर अच्छे आदमी है। हाँ जी, तारिक चौहान साहब की तरह सब्र वाला बंदा, पेशेंस वाला हर बंदा नहीं होता, वो थोड़ा टेम्परामेंट लूज कर देते हैं ਇਹ गुस्से ਵੀ ਤੇ में। ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਦੇ। नहीं वो अकबर खान साहब थोड़ा सा ना, आमिर भाई मैंने एक बात तो करनी थी, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो मैं करूँ। करें बात होगा। मैंने आमिर भाई बात ये करनी थी आपसे बेसिकली कल के मामलात के थोड़े हवाले से, कि आमिर भाई बात ये है कि देखिए हम लोग ना नौजवान लोग हैं, अक्सर औकात हम लोग गलती कर जाते हैं, बात करने में हमें समझ नहीं आती तो हम लोग मिस्टेक तो करते हैं, लेकिन बात ये है कि उसकी निशानदेही आप लोग जब करेंगे तो ही तो हम लोग सीखेंगे उस मामलात को। तो कोई गलती अगर इंसान कर ले और कोई आके आपको ये कहना शुरू कर दे कि नहीं ये इसका किरदार मशकूक हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो इस पे थोड़ा सा वो मेरी ये आजाना गुजारिश है कि इस पे थोड़ा सा आप देखा करें या कंट्रोल किया करें कि फ़ौरन ही किसी को तोल ना दिया करें, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है, आपको पता है कि आपने भी मुझे एक दो बार ब्रॉड पे बताया है, ज़िया रसूल भाई ने भी बताया है कि वलीद भाई इस तरह बात किया करें। तो जब तक आप लोग इस्लाह नहीं करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे? हमें गलती करने का तो मौका दें ना जी। हम यही आप गुजारिश थी मेरी। हम आप पर पूरे मुतमिन हैं। अगर किसी साथी ने कोई इस तरह की शिकायत की है तो उसके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। हम दोनों में से किसी का कोई ऐसा मामला नहीं है। वो खामखा जिसने बात की है, मेरे ख्याल से वो इतनी अहम बात भी नहीं है, खामखा आपने दिल पे रखी हुई है। हो जाती है इस तरह के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, लोगों को राज़ी करना, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना, सबसे मुश्किल काम दुनिया में ये है। लोगों की आप ख्वाहिशात पूरी करते करते और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करते करते अपना कख ना रहे ना, तीला ना रहे, तो कहते फिर कख रहने देना। बस लोगों को ना देखें, आप अपने जो ऑनेस्टली खलूस नीयत से जो काम कर रहे हैं वो करते जाएं, तो इधर उधर की परवाह ना करें, कुछ नहीं होता। आमिर भाई इजाजत है? यहाँ पर तो जो कुछ हुआ है, शायद आप लेट आए हैं, यहाँ पर तो बहुत बहुत कुछ हुआ। लोगों ने तस्वीरें हमारी लटका के वो माँ बहन की बेटियों की गालियाँ दी हैं मुसलमानों ने, खुद को मुसलमान कहने वालों ने। ये भी नहीं कि मरजाई तो रोज़ ही देते, वो तो अभी भी देते हैं। मुसलमान कहने वाले गालियाँ देते हैं मुसलमानों को। तो बड़ा दिल करके चलें जी, करें भाई नजब बात। अच्छा बहुत शुक्रिया वलीद भाई। कोई और बात तो नहीं है? कर लें अगर, फिर मैं बाद में कर लूँगा। नहीं आप करें बात। मैं तो बस आमिर भाई सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं तो मतलब जब आपकी महफिल में बैठा भी होता हूँ ना, तो मैं बड़ी नाप तोल के बात कर रहा होता हूँ कि आपका या ज़िया भाई का या नईम भाई का बहुत रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े हैं,
آپ لوگ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یار یہ غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں، اس غلطیوں سے آپ سیکھیں. تو میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھوں اور اس میں میرا جو بھی سوال ہو، میں تو ہر سوال اس نیت سے کرتا ہوں کہ اگر وہ سوال ہی میرا غلط ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ سوال ولید بھائی غلط ہے اور اس کا سوال بھی یہ ایسے کرنا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا، اگر ہماری ماننی ہے تو اس کو دوبارہ آج کے بعد نہیں کرنا. اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بڑا کچھ ہے آلے دوالے، بس حاسدین کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے، کینہ پروروں کے کینہ سے، گھر سے نکلتے ہوئے نا روز جو میں دعا کرتا ہوں، لمبی دعائیں ہیں جو میں گھر سے نکلتے ہوئے کرتا ہوں، تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے. تو بہت زیادہ ارد گرد بیماریاں ہیں. بس آپ دل میں ہمارا حیا احترام کرتے ہیں، یہی کافی ہے. وہ بندے کے لہجے سے، ٹون سے، بات سے پتہ چل جاتا ہے. جب آپ 2-3 بار دہرا کے کہیں گے یہاں پر کئی خیموں میں آگ لگ جائے گی. اے بریلوی مولوی بڑا اے بھابی مولوی ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਏਗਾ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜੇ 2-3 ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਛੱਡੋ ਬਸ. ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਲੀਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਹੰਮਲ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 2-2 ਗੋਲੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਦਿਓ. گھر لے کے پانی پاؤ، اگ لگی کرنے اگ لگی. اچھا عامر بھائی اور ضیاء بھائی اور راجہ صاحب بھی ادھر موجود ہیں، صاحب بھائی موجود ہیں. پہلے وہ واٹر کے ساتھ کوئی بات چل رہی تھی جو راجہ صاحب کی چل رہی تھی، جو یہ ابن ماجہ کے ساتھ جو چل رہا تھا نا عدنان رشید بھائی کا. ابھی میرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے قبلہ چینج کیا یا جو بھی تھا، کیا اس وقت شریعت مکمل تھی؟ اور جب مرزا صاحب آئے کیا شریعت اس وقت مکمل تھی کہ نہیں تھی؟ مرزا صاحب نے اپنا جو شرکیہ عقیدہ چینج کیا وہ شریعت مکمل ہونے کے باوجود کیا یا شریعت مکمل نہیں تھی؟ جی یہ میرے خیال سے آپ نا ایک ایکسٹرا لیول پہ جا کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. باقی اس سے نیچے والا جواب تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال بھی ہے، جواب بھی ہے، یہ بھی ایڈ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شرعی حکم تبدیل کریں تو ان کے پاس اس کا اختیار تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے نبی ہیں، ان کی اپنی شریعت ہے اور احکامات شریعت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہوا کرتی ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات میں تبدیلی وقت کی نزاکت اور ضروریات کے مطابق کرتا رہتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوئی. اور اس لیے کہ ان کے پاس اختیار تھا تبدیل کرنے کا. مرزا غلام قادینی کا یا تو یہ مان لیں کہ یہ اس کا صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ تھا، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اگر یہ انکار کرتے اور کہتے نہیں وہ صاحب شریعت تھا ہی نہیں اور کچھ شوشہ بھی ایک شریعت کا وہ نہیں بدل سکتا تھا، تو مرزا غلام قادینی اپنے ایک کوئی بھی اس کا عقیدہ دعویٰ ہو اس کو وہ بدل نہیں سکتا اس قانون کے تحت. اگر اس نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو بعد میں وہ فوت شدہ نہیں کہہ سکتا. یا پھر یہ بات اس کی اگر مانیں گے تو پھر اس کا دوسرا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں شوشہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. شوشہ کیا پوری شخصیت کے بارے میں عقیدہ تبدیل کر دیا. اگر اس نے پہلے کہہ دیا کہ معجزات حقیقی ہیں اور حقیقی رنگ میں ہوتے ہیں تو بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمثیلی باتیں ہیں، مردے زندہ کرنا سے مراد روحانی مردہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اپنا عقیدہ، اپنا دعویٰ یا کوئی خبر اس نے دی ہو تو وہ تبدیل نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں کر سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو صاحب شریعت ہیں. ان کی زندگی میں شریعت کا تبدیل ہونا جائز امر ہے اور اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا.
भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, यही बात मैं उनको समझाना चाहता हूँ जो अहमदी हजरात है कि भाई मिर्ज़ा साहब को ये साहब कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लम की वो जो कहते हैं जी इत्बा में आए हैं, और फिर वो शरीयत को चेंज कैसे कर रहे हैं। जैद जमील भाई, जो आपने सवाल किया ना वो बड़ी अहम बात है। उसके अंदर यह बात है, या आपने वही बात की है आप सही कर नहीं सके, या उसके अंदर एक अहम बात छुपी हुई है, और वो ये है कि शरीयत आई आज से 1400 साल पहले, 14 सदियां पहले। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को हयात मानना शिरकिया अकीदा था तो आज भी शिरकिया है। अगर 1400 साल पहले जब ये शरीयत आई ये अकीदा शिरकिया नहीं था तो आज भी शिरकिया नहीं है। मिर्जा साहब ने तो नहीं ना बताना कि अब ये शिरकिया हो गया है। अगर ये शिरकिया था तो पहले दिन से शिरकिया था ना। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो 52 साल अपने ज़िंदगी के गुजारे हैं, शिरकिया कीदे पर गुजारे हैं या इस्लामी कीदे पर गुजारे हैं, इसका जवाब कोई बंदा नहीं दे सकता। अगर वो कहें कि सही पहले वो सही था, उस पर कोई हद लागू नहीं होती भाई। जब शरीयत आ गई उसके बाद शरीयत लागू हो गई, हद लागू हो गई। शिरक पर, कुफर पर, जना पर, जुए पर। वो थे ना जिन्होंने यार ताइफ में पत्थर मरवाए थे, अभी याला उनका नाम था। जब वो इस्लाम कबूल करने लगे तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे कबीले के लोग सूद का कारोबार करते हैं तो वो इस्लाम तो कबूल कर लेंगे, लेकिन ये हद आपने फ़ौरन नहीं लागू करनी। सूद वाली ना थोड़ा उसमें रख लें, टाइम रख लें, थोड़ी देर के बाद इनको बता देंगे, कुछ साल 2 साल। आपने फरमाया ना, जब शहादत दे दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, शरीयत के तमाम अहकामात लागू हो जाएंगे। एक एक करके उसने पहले जुए के, उसके सूद के बारे में कहा, फिर जुए के बारे में कहा, फिर शराब के बारे में, मेरी कौम शराब की आदी है, शराब की हद ना लगाएं। फिर कहने लगा ज़िना की आदी है, ज़िना की हद ना नाफज करें। आखिर में उसने ये कहा कि मेरी कौम बुतों की पुजारी है, बुतों की पूजा करती है, तो आप ऐसा करें, मेरा कबीला सारा इस्लाम कबूल कर लेता है, लेकिन ये बुतों के मामले में थोड़ा सा ना थोड़ी नरमी कर लें, आस्ता आस्ता उनको समझा लेंगे। नबी पाक ने फरमाया पहला काम ही है करना है, बुत तो तेरे पहले में भरने ने चाचा, ये छड़ दे गल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब शरीयत आ गई उसी वक्त से उसका हुक्म नाफजुल अमल हो गया। जिस तरह पाकिस्तान में कानून बनता है, कहते हैं ना 1 जून 2024 से ये जो है काम, ये डबल सवारी पर पाबंदी है। 1 जून 2025 से कार में 4 बंदों की बैठने पर पाबंदी है, उस दिन से कानून लागू हो जाता है। ऐसे ही शरीयत 1400 साल पहले आई। अगर ये कानून बन गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर समझना शिरक है तो शिरक है, आज भी शिरक है। फिर मानना पड़ेगा कि मिर्जा कादियानी भी शिरक पर रहा है 52 साल। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी शरीयत में शिरकिया अकीदा करार नहीं दिया, अगर ये बंदा शिरकिया अकीदा करार देता है तो नई शरीयत का वो बुनियाद रख रहा है, नई शरीयत का एक कानून पैदा कर रहा है। और किसको कहते हैं शरीयत? उसने कहा है कि शरीयत, ये भी तो जानो शरीयत चीज़ क्या है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का नाम ही शरीयत है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इसका नाम ही शरीयत है ना। अगर एक बंदा गुनाह करता है, शिरक करता है, कुफर करता है, तो उसी को तो रोकना, इसी का तो नाम शरीयत है। बहरहाल ये बड़ी अहम बात है। मिर्ज़ाई इससे धोखा देते हैं। जब आप मिर्ज़ाइयों के सामने सवाल रखें तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये सबसे बड़ा शिरक है, शिरकिया अकीदा है, तो ये बताओ कि जब मिर्ज़ा साहब 52 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा मानते नहीं थे, साबित करते थे। ज़हन में रखें ये लफ्ज़, ये ना बोलना मानते थे, क्या ना साबित करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा साबित किया करते थे, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। ये आयत पढ़ के इब्राहीम अहमदिया में लिखा हुआ है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो इस्लाम उनके हाथों जमी आफाक और कतार में फैल जाएगा। उनको मानते थे कुरान की आयतों से। वाइज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया, ये आयत लिखी हुई है इब्राहीम अहमदिया में। आयतों के हवाले दे दे के कुरान वो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करते थे। क्या तब ये अकीदा शिरकिया था कि नहीं था? जब वो 52 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित किया करते थे, क्या उनका अकीदा शिरकिया था कि नहीं था? अगर था तो जो बंदा मुशरिक हो, 52 साल तक मुशरिक रहे, उसको अल्लाह नबी बनाता है?
उसको मसीह मौत चुनता है। अगर वो शिरकिया अकीदा पहले नहीं था तो आज कैसे हो गया? इसका जवाब मिर्जाइयत की तवफ़ी हो सकती, इसका जवाब मिर्जाई नहीं दे सकता। तो ये बड़ा अहम है। कुछ लोग ये भी कहते ये हैं सवाल कि किया जब था अमर भाई रात को अदनान रशीद ने उनसे कि मिर्जा कह रहे हैं कि वो अल्लाह से इल्हाम पाकर ये बहीने अहमदिया लिख रहे हैं, और उस वक्त वो मुशरिक थे, तो कैसे वो इल्हाम पाकर लिख रहे थे? यही क्वेश्चन किया था रात को। नहीं उस्मान भाई, मसला ये आता है, कुछ मरज़ई अहमदी कहते हैं कि भाई ये जो इन्होंने शिरकिया अकीदा कहना शुरू किया है वो उनको वही आने के बाद किया। तो आमर भाई वाली बात सही है, फिर ये शरीयत को मुकम्मल मानते ही नहीं है। इसका मतलब वही आई है, वही आई है तो नया शरीयत का हुक्म लेके आई है ना कि आज के बाद जो ईसा को जिंदा मानेगा वो मुशरिक है। पहले नहीं थी ये शरीयत, नहीं थी, नई शरीयत आई है ना, फिर शरीयत ही चेंज हो गई है फिर। ये तो बिल्कुल ऐसे ही आता है ना। ये बहुत अहम पॉइंट है। इसको अगर बंदा सिर्फ इस पॉइंट पे किसी को पकड़ लेना, बंदा हिलेगा देखना है, तुसी हुण मंजी भी थल्ले हिलेगी तो जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों टोनी साहब, ये हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरे पास, मैं अब साथ में ड्राइव कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास तकरीबन 50 मिनट हैं, हम बात कर सकते हैं। तो माजूद के साथ पहले आप मुझे बुला रहे थे, मैं नाश्ता कर रहा था फटाफट। कोई मसला तो अब सर एक बात मैं ये कहूँगा कि देखें मुझे ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से पहले क्या कीदा था? नबी जो होता है वो तो पैदाइशी नबी होता है, ठीक है? तो बल्कि पैदाइश से भी पहले होता है, अल्लाह ताला ने जिसको नबी चुनना हो। दुनिया के सामने ऐलान बाद में होता है, जो वो जब अल्लाह ताला चाहते हैं तब हो जाता है 40 साल की उम्र में। ठीक हो गया? सब अंबिया कराम को कमोबेश जो नबूवत हुई है 40 साल की उम्र में हुई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, इनको ये बताएं, ये जो ये कहते हैं ना कि आपका खाना काबा पहले दूसरा था, ठीक है, फिर चेंज हुआ, ये जो मिसाल देते हैं, तो इनकी मिसाल यहाँ पे तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये तो अकल नहीं मानती, ठीक है? अलग साहब, आप ये बताने की बजाय हमें ये बताएं जो आप बताने लगे थे कि ये तो वही पढ़ी आपने। मैंने कहा ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है यार? अकल को छोड़ें आप यार, मतलब आप सोचें कि क्या ऐसे अल्लाह ताला ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है? उसकी उन्होंने वजारत की है वहाँ पर, वो मरियम से वो इब्ने मरियम कैसे बने, वो तो इस्तिआरे किरानी में उन्होंने बताया था ना कि भाई पहले मैं मरियम बना फिर मैं इस्तिआरा हालत आप किसको कहते हैं? इस्तिआरा हालत आप किसको कहते हैं, मुझे ये बताएं। इस्तिआरा असल में सिर्फ एक तशबीह होती है, वो ऐसे ही है जैसे आप उसकी कोई बना नहीं लेते, जिस तरह ये होती है पुतली नहीं होती, पुतली वो हकीकी बंदा तो नहीं ना होता, वो एक देखें मेरी एक कम ऑन यार, यानी उन्होंने तो ऐसे ही कहना था, और तो और इससे भर के तो वो कुछ कह ही नहीं सकते थे। तो एक आपको ये बात बुरी लगी, और क्या गलती लगी कि आपने फिर उनको छोड़ा मिर्जा से? और कौन सी उनकी बात? सर और बहुत सारी बातें हैं जो मेरे अभी माइंड में अभी, क्योंकि देखें एक जब बंदे का ना माइंड होता है ना डिबेट बात करने का या डिबेट करने का,
ٹھیک ہے, وہ ایک مائنڈ ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں سر. میں دیکھیں یہ جماعت جسٹ ایک بزنس مافیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھیں جو الہی جماعت اگر کوئی ہو نا, یہ کیا بات ہوئی کہ یار کچھ ہو گیا تو جماعت سے اخراج ہو گیا, جماعت سے نکال دیں, چندہ نہیں دینا تو چلے اخراج تو نہیں, لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ جو ہے نا جماعت میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے. یہ کیا بات ہے یار, یہ کیا ہے؟ یہ تو نظام کی چیزیں ہیں, انتظامی باتیں ہیں, ان سے خلاف ہو جاتا ہے. نہیں سر, نظامی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی الہی جماعتیں ہوتی ہیں نا, ان کے ایسے نظام نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ, ان کے ایسے نظام نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے کہ یہ اس کا شریعت میں تو کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بتا دیں کہ جس نے زکوٰۃ جو ہے وہ تو ہم پہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ فرض ہے, ٹھیک ہے. استطاعت اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح حج اگر استطاعت ہے تو کرنا ہے, فرض ہے. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ پہ بھی چھوٹ دیتا ہے. بات یہ ہے ملک صاحب, اب ضیاء بھائی موجود ہے تو میں نے 2 منٹ بزی ہونے لگا. بات یہ ہے کہ اس میں مرزا صاحب کا تو کوئی قصور نہیں نا. اگر انہوں نے بعد میں ایک نظام تیار کر لیا اور اس کا نام رکھ لیا خلافت کا نظام, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے نا یہ جو کچھ جمبا گروہ بھی اور یہ لاہوری گروہ بھی وہ کہتے ہیں نہیں حکیم نور الدین صاحب تو جو تھے نا وہ تو ولی اللہ تھے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ بعد میں مرزا صاحب کے بیٹے نے یہ جماعت قائم کر دی. آج میں نے ثابت کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کام ہی سارا اس بڈھے خراب کی تھا. وہ کہتے تھے, حکیم نور الدین صاحب کہتے تھے کہ مرتدوں کی طرح سزا دینے کے لیے تمہیں میرے پاس خالد بن ولید موجود ہے, خبردار جو تمہیں ادھر ادھر, میں خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے, میں یہ چادر نہیں اتار. مطلب وہ اپنے آپ کو ثانی ابو بکر کہنے سمجھنے لگ پڑے تھے معاذ اللہ. اور ان کا دماغ جو ہے نا وہ آسمان پہ. میرا 1 منٹ تھوڑی سی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا نظام بنایا ہوا ہے نا, اس میں مرزا صاحب کا کوئی قصور نہیں. یہ دکان بنی ہے بعد میں. مرزا صاحب کے عقائد اور نظریات سے آپ کو کس بات پر لگا کہ بھئی یہ مرزا صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بات بتائیں. ضیاء بھائی میں پہلے تو یہ دیکھیں نا, پہلے تو دیکھیں میں پیدائشی احمدی تھا, ٹھیک ہو گیا. ہم نہیں جانتے تھے لاہوری گروپ شروپ کو, ٹھیک ہو گیا. نہ ہمیں کوئی نالج ہوتا تھا لاہوری, بس اتنا بتاتے تھے کہ وہ خلافت کو نہیں مانتے, ٹھیک ہو گیا. حکیم نور الدین کے صاحب وہ جو پہلے خلیفہ ان کے بعد وہ نہیں مانتے کسی اور خلیفہ کو, ٹھیک ہے, حکیم نور الدین صاحب کے بعد. تو اس لیے ان کو وہ جماعت میں ہے ہی نہیں, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں, ہم سے واسطہ ہی نہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ایک پیدائشی بچہ ہے وہ اپنی ہوش میں خلافت کو دیکھتا ہے. ہم حضرت ہم جو ہے وہ طاہر احمد کے پوت تھے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے سر کہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں 2004 تک, میں 85 کی پیدائش ہوں, ہم نے اپنا بچپن, ہم نے اپنی مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ جب وہ دنیا سے گیا ہے تو میری عمر تھی 2004 میں 17-18 سال ہوگی, 16-17 سال, ٹھیک ہے. تو اپنی عمر کا کوارٹر حصہ ہم نے اس کو دیکھا, اس میں بڑے ہوئے, سارا کچھ دیکھا, ٹھیک ہے. اور اب یہ جو نمونہ آ گیا اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس نے تو جماعت کو جو ڈیمیج کر دیا پکڑ کے, اور اللہ ہی کہتے ہیں نا کاربن کرنے والا ہے, تو اللہ ہی اس کو لے کے آیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا ان کا ستیہ ناش ہو. اب بات یہ ہے سر کہ اب آپ اور میں نے باتیں تو بہت ساری ہیں نماز ان کے جماعت کے حوالے سے اور سارا کچھ ہے. اب اگر بات کر لیں غلام احمد کی سر, تو وہی بات ہے جو آپ بھی ابھی پہلے فرما رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جب انہوں نے وہ غلام احمد صاحب حنفی فرقے سے تھے, ٹھیک ہے نا, حنفی فرقے سے تھے, سنی فرقے سے تو نہیں, اہل سنت جماعت سے تو نہیں تھے, رائٹ. وہ حنفی فرقہ رکھتے تھے,
अकीदा उनका हनफिया था? नहीं, हनफी सुन्नी होते हैं ना, और कौन होते हैं? नहीं सर, आप पहले मुझे ये बता दें कि हनफी और अहले सुन्नत जमात में क्या फ़र्क है? नहीं, अहले सुन्नत में 4 इमाम हैं, वो हनफी भी हैं, वो भी अहले सुन्नत है, शाफी भी हैं, वो भी अहले सुन्नत, मालकी भी हैं, वो भी अहले सुन्नत। ठीक हो गया, फिर इनमें फ़र्क क्या, बस ये बता दें ज़रा। नहीं, बस उनके फ़िक़्ह के अपने अपने इमाम हैं, अलग-अलग, उन्होंने तफ़हीम दीन बस अपने फहम के मुताबिक पेश की। यही सुनना चाह रहा था आपसे, तो हैं तो वो हनफी फिरके से थे ना सर, अहले सुन्नत जमात से तो नहीं कह सकते ना, ठीक है? मैं ये बात कर रहा हूं। आमर साहब कुछ सिख भी लिया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। बंदा बड़ा सिख लो फिका की ये ले जाएगा जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟਿਓਂ ਪੈ ਜਾਏ। हमारी असल बात यह है कि अहले सुन्नत के आगे 4 मकतबा फ़िक्र हैं, मकातबे फ़िक्र हैं 4 अहले सुन्नत के। वो फ़िकी मामलात में जो 4 फ़िका के इमाम हैं, उनमें से जो जिसको मानता है वो उसी की निस्बत से कहलाता है। जैसे जो इमाम अबू हनीफ़ा को मानता है, उसकी फ़िका पे को मानता है, तो वो हनफी कहलाते हैं। होते वो अहले सुन्नत है, बेस उनकी अहले सुन्नत है, फ़िकी मामलात में वो हनफी कहलाते हैं। तो हनफी भी इस हिसाब से हनफी भी अहले सुन्नत हैं, शाफी भी, मालकी भी, हम्बली भी, सारे अहले सुन्नती हैं। अहल सुन्ना जो है ये अकीदा है, और यानी अकायद के अतबार से वो अहल सुन्ना है, अहल सुन्ना वल जमा। लेकिन फ़िकी मामलात के फ़िकी मसाइल के हवाले से वो जिस भी फ़िका के इमाम को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आगे वो कहलाते हैं कि ये हनफी हैं, ये शाफी हैं, ये मालकी हैं, ये हम्बली। मैं माजरत चाहता हूँ ज़िया भाई, इनको थोड़ा सा ये भी बता दें फ़िरका और फ़िका में क्या फ़र्क होता है। हाँ जी सर, ये मुझे पता है, फ़िरका और फ़िका का मुझे पता है, ठीक है। अब बात ये है कि लेकिन ये मुझे नहीं पता था जो भी आपने बताया कि अहले सुन्नत जमात से बेस अहले सुन्नत जमात ही है, ठीक है। लेकिन सर देखें, मैं तो मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं तो अपने आप को अहले सुन्नत जमात से भी नहीं कहता, ठीक है। मैं मुस्लिम हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़े एक जहालत से निकला हूँ, ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि मैं जो है ना इधर से निकलूँ फिर अल्लाह मुझसे पूछे कि ये क्या किया है, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि फ़िरकों में नहीं बटना, ठीक है। मैंने कुरान पाक और हदीस को पकड़े, अपना अकीदा जो है सारा मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वही अकीदा है, बात ख़त्म हो जाती है। बाकी जो है अमामों को मानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अमामों जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं भी मानेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्लाम से निकल जाएंगे। नहीं, वो बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। कोई बंदा आपको पाबंद नहीं कर सकता कि किसी इमाम को माने, आप किताब और सुन्नत को माने। आमर रज़ी साहब कुछ सिख भी लिया करो ना कोलों। मिर्जा साहब की कौन रोशनी आ गई है नेरे छड़ के ते तुसी फिर भी नहीं तवज्जो देंदे उन्हां दी गल्लां तो। मिर्जा साहब की गल को पूछ लें तो ना इन्हां कोलों केड़ी चंगी लगी, सच्ची लगी भी है, भी मिर्जा साहब सच बोले, इत्थे भी मिर्जा साहब सच बोले। हाँ जी, मैं ये सर आपको बताने जा रहा था यार, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੜੋ, ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 100 ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 10% 5% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਕਾਤ नहीं ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। नहीं सर देखें एक में जरा मुझे बात करने दें। बात ये है सर, देखें अगर आप चंदों की बात करें, इस्लाम में तो किसी चंदे का जिक्र ही नहीं है, सदकात का जिक्र है। ये लन तनालुल बिर्रा का क्या मतलब है? चलें अब मुझे यार मेरी बात सुने, पहले मुझे जरा बात करने दें पहले, ठीक है। अगले की खिड़की ना घुमाया करें, ठीक है। बात जो हो रही है ना, पहले मुझे वो बात करने दें, ठीक है। अब आप ये बात करेंगे, आपने कहना आपको इसका मुझे नहीं आता, इसका तर्जुमा मुझे नहीं पता, अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ठीक है। अब आप उस तरफ ले जाएंगे। ये बात जो आलिम है उनसे पूछे जाके, ये बैठे हुए हैं हजरात, इनसे पूछें,
मैं जो एक बात कर रहा हूँ कि चंदों की जो बात है, इस्लाम में किसी चंदे का जिक्र है? इनके तो इतने चंदे के मुक्ते नहीं है, ठीक है? बंदा जाए कहाँ पे? सही है, आप ना दें तो आपके घर आके आपको वैसे मार देते हैं, इतना तंग करते हैं, ठीक है? जनाबे तो वाला बात आपने ये है गलत सर, समझा है। पहले मैं बात तो करने दे, आपको बात करने दे मुबारकबाद ना। देने लगा हूँ, आपने इस जमात से जान छुड़ा ली है। मैं तो जाने वालों को खुदा हाफिज कहता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। अब तो आप अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गए हैं ना। आप तो ज़लालत और गुमराही को छोड़कर नेकी और हदायत की तरफ आ गए हैं, सर एक बात राइट? सुनने का ना, आप मुझे मुबारकबाद दें या ना दें, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ सर जी, आप तंजिया बात करें या ना करें, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि चंदों का और जिस तरह से आप इनका इनकी गद्दी चल रही है, इनका निज़ाम है, ठीक है? मुझे एक बात बता दें सिर्फ आज, ये फिजा बीबी जो है, ठीक है, मिर्जा ताहिर की बेटी, वो क्या फरमा रही है? वो कह रही है कि इन मुशरकों से अपनी जान छुड़ाएं, ये मुशरक हैं, ठीक है? अपना अपना सोचें, अल्लाह को पकड़ें। वो उनकी बेटी जिन्होंने पूरी उम्र उनके ताहिर के अंदर परवरिश पाई, ठीक है, पीछे रह जाता है निदा के। और आपका जो खलीफा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है निदा को कि बस जना हो गए हैं, जिंदगी में जना हुए हैं ना, तौबा ताइफ कर लो, आगे बढ़ो। लानत है इस पे, ये खलीफा इस्लाम है। हाँ, क्या आप आपने क्या बात कर रहे हैं? अब बात सुन रहे ना, आपके नज़दीक इस्लाम जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जनाब ये है कि जैसे फिजा बीबी साहिबा ने या निदार नसर साहिबा ने जो ये जो इल्जामात फिजा लगा बीबी का और दिए, निदा का जो मामला हुआ है ना, ये अल्लाह ताला का एक बड़ा मुआवजा हुआ है, और इससे बड़ी जमात उखड़ी है। ये तो पहले तो ये लोग हिलते नहीं थे। अच्छा ठीक, और जब बात हो जाए तो फिर मुझे बता देना, मैं रिस्पॉन्ड दे दूँ। मलिक साहब, ये जो है ना दीन की बातें, आप नौजवान हैं, दीन की बातें रेफर करें उलमा की तरफ। आप उनको सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि भाई आपने जमात को क्यों छोड़ा है, बस ये बताएं। दूसरी बात ये है कि ये जो उस्मान डार है ना, ये जो ऊपर उस्मान बैठे हुए हैं, इनके साथ व्हाट्सअप नंबर इनके साथ शेयर कर दें अपना, कम अज़ कम आपके साथ कोई, क्योंकि जाहिर है कि अभी आप थोड़े ही साल हुए हैं, बहुत सारी बातें, जिस तरह अभी ये अहले सुन्नत वाली बात आप कह रहे थे कि भाई मेरे इल्म में नहीं था, इस तरह कोई रहनुमाई चलती रहती है साथ साथ बंदे की, थोड़ा सा इनके साथ रब्ता कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहरहाल आप टोनी साहब के साथ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि टोनी साहब तो बहुत मैच्योर और बूढ़े जहांदीदा काग, क्या उनको कहना चाहिए, जमात के फर्द हैं। तो आप नौजवान हैं, आप इनके साथ बहस ना कीजिएगा। बस इतना है कि आप बताएं कि आपने क्या क्या गलतियां देखी हैं। आपको ये बताया गया कि ये जमात कोई इस्लामी जमात है, और जब पता लगा कि ये तो सारा कोई चंदे का धंधा है। अच्छा, वो एक इल्ज़ाम लगा रहे थे आप पर, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, वो कह रहे थे कि शायद आपका अखराज हुआ है चंदा ना देने की वजह से। क्या ऐसा ही है? पहली बात तो ये है कि सर, पहली बात तो ये है कि मैं मूसी था, वसीयत की हुई थी मैंने भी वो सोचा था कि उस टाइम जब हदायत नहीं थी कि भाई मैं भी चलो जन्नत में चला जाऊं, ठीक हो गया। अब बात ये है कि चंदों से तो मैं भागा नहीं, मैं तो मूसी था, ज्यादा देने वाला था, ठीक है। और दूसरी बात और वसीयत मैंने की थी। ये फारूक भाई ऊपर नहीं, नजर भाई थल्ले हो बंदे यार। फारूक भाई इधर जी मैं थले जाना, मैं थले जाना हो गया। और बात ये है कि मेरे पास आज भी लेटर पड़ा हुआ है मसरूर अहमद को, जो मैंने मसरूर को जो इस लांती को भेजा हुआ है, मैंने उस टाइम पे भेजा था। अगर इस तरह लानती करना है ना, तो आप जहाँ पे गए, अच्छा मलिक साहब थोड़े अल्फाज, लाख लानत है। कोई अगर ये करना है तो आपकी जिन्होंने तरबियत करके इस मुकाम पर लाया ना, उन पर लगातार मुसलसल कोई कुछ नहीं हुआ, रुक जाए और अगर मेरे काबरीन पर लानत भेजने वालों की हर सांस पे लानत, आपसे कह के मैं वापस ले रहा हूं अल्फाज यार, वो भी कह देगा चलो के काबरीन पर लानत है, उनके मसलक पर, उनके मजहब पर लानत है। कर जाएगा यार, सब्र कर लो टोनी साहब प्लीज। कुछ नहीं होने लगा, तसल्ली दो टोनी साहब नूं ना जरा।
मलक भाई आप ये लानती का वर्ड का जी वापस करें जी, कोई ऐसा मसला ना करें। एक मिनट सर, मैं सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे किसी ने तरबियत नहीं दी। ये मेरा दुख है, ये मेरा दर्द निकल रहा है, ठीक है, कि गुलाम ने हमें जिस जहालत में हमें डाल दिया है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया है, ये वो चीज निकली है, ठीक है ना। तरबियत ना कहें आप भाई, आपको निकल गया, आप तो रोशनी में आ गए ना, आपको लेकिन रोशनी मुझे दुख मुबारक, है, नई जिंदगी लेकिन मुझे मुबारक। दुख है कि मेरी नस्लें बर्बाद हो गई हैं इसमें, ठीक है ना, और आगे पता नहीं कितनी होनी है। ये बात है सर, ये दुख दर्द है। वसीयत वाली मलक भाई, वसीयत वाली बात पूरी कर लें, वसीयत वाली बात पूरी कर लें। हाँ जी, ये सारा दुख दर्द है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो गई, हमारी नस्लें बर्बाद हो गई गुलाम कंजर की वजह से। ये उनको गालियां निकालने वालों की पैदाइश से लेकर उनके नए अकाबरीन पर, उनके मसलक पर, उनके मजहब को जितना कहा गया है, उसको लाख गुना इजाफे के साथ वापस ले लो, 38 कोई साल का रियायत बंदा वे नहीं। 6 साल होए मुसलमान होया वे सारा कसूर दी की आ गए सो मेनू गाਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਖ ਗੁਣਾ सर देखिए, मैं गालियां निकालता नहीं हूँ ना, मैं इस तरह बोलता हूँ, ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे दुख है, हम जो भी जमात से निकले हैं ना, हमें दुख है, हमें दर्द है, तकलीफ है कि हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं और आगे पता नहीं कितनी होनी गई है ना। अब खुश रहो, अब कहाँ गए हैं सर? ये तो मैं एक निकला हूँ ना, मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे, सारे मेरे निकल बहन गए, भाई कहाँ मुझे जाएंगे, मेरे बच्चे कल को कहाँ जाएंगे, ठीक फोत है? हो जाएंगे सब वो बड़े होकर, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, लेकिन बिलाखिर तो फोत होना है सर। अच्छा, फोत होने के बाद कहाँ जाना है फिर? आपका क्या ईमान है फिर? अब तो मैं तो आपको मुबारकबाद देने लगा हूँ कि जनाब आपने जमात अहमदिया को छोड़कर, अंधेरों से निकलकर आपने रोशनी का सफ़र इख्तियार किया, बद इखलाकी, बद ज़ुबानी, बद कलामी को छोड़कर अब खुश गुफ्तारी, अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानी व यदई पर अमल करते हुए खुलक अजीम अखलाक मोहम्मदी अपनाने का मौका मिला आपको। गुलाम अहमद साहब ये फरमा रहे हैं, जो वो उनको तो छोड़ देना, वो तो यस्टरडे था, वो तो पास था। अब तो मैं तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपको जो है। अच्छा, अब आपको कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा लगा है जिसमें आप शामिल हुए हैं, हाथ बांध कर या हाथ छोड़कर पढ़ने वाला? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहरीन में मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि जिसने इस्लाम देखना है ना, अरब मुल्कों में चला जाए, ठीक हो गया, बहरीन में चला जाए। नहीं मैं वो नहीं बात कर रहा सर, मैं वो बात नहीं कर रहा। यानी जो अक्सरियत बहरीन में है, मैं वहाँ पे बड़ा हूँ, वो होना चाहिए। एक मिनट बात सुन ले ना सर जी, बात सुन ले। आप लोग बहरीन वालों, आपको यह पता होना चाहिए कि हजरे अस्वद को लेकर 23 साल तक अपने पास रखा था। बहरीन वालों ने हज करते वक्त हजरे अस्वद वहां से निकाल कर बहरीन ले आए थे और 23 साल तक, 23 लॉन्ग ईयर्स तक और अपने कब्जे में रखा था। आप उसकी परवरिश की बात करते हैं, उस तहजीब की बात करते हैं। टोनी साहब मैंने एक गल दसो, 23 साल नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। 23 ਸਾਲ ਜੀ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी, मर जाना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। कल मैं 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਹਮੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ में नहीं जाने देते, हम पे पाबंदी लगाई हुई है। यार अखलाकी तौर पे मर जाओ तुसी तो। हाँ जी ठीक, कल मैं नाश्ते तो बाद सोचांगा। ठीक है, जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गल तुसी पिराने पीर को पूछ के कर रहे हो गौस पाक को कि अपने आप ही वही जा रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह।
ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जवाब देने के मूड च नहीं होना। अच्छा सर, बात ये है देखें, ये बहरीन की बात कर रहे थे, मैं असल में साथ में ड्राइव भी कर रहा हूँ तो मुश्किल हो जाता है। सर बहरीन होता है, बहरीन नहीं होता, खुदा के लिए, ठीक है ना। हम लोग वहाँ के बच्चे, हमें ना सिखाएं, ठीक है। अच्छा, मैं माशाल्लाह 18 साल मैंने बहरीन में गुजारे हैं, मुझे अरबी आती है, ठीक है। मैं उधर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर था, सही है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। अब हमें ना सिखाएं कि बहरीन है या बहरीन है। आपको पता था कि 23 साल तक हजरे असवद उधर रहा है बहरीन? हाँ जी, मुझे पता था, बिल्कुल पता था। लेकिन उसके बाद आप आइडियलाइज करते हैं उस सोसाइटी को ना? नहीं, एक बात सुने, मैं बिल्कुल आइडियलाइज करता हूँ। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने तो वहाँ की जिंदगी देखी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई होगी, या चले हाजी उमरा करके आगे, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ, मुझे वहाँ के उलमा का पता है, मुझे वहाँ के इस्लाम का पता है, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, ठीक है। आप इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान उलमा हैं, कसम खुदा की बहुत अच्छे हैं, बहुत उन्होंने काम किया है, खासकर अहमदियत के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है, ठीक है। हाँ जी, माशाल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि मतलब आपका अरबों से क्या ताल्लुक है, मुझे ये तो बताएं। अरब आपको जानते नहीं है, ठीक है। इंसानियत नाली कोई नहीं। एक बात सुने ना, आपका सिखों की तरह एक अपनी एक हदूद है, ठीक है। अरब मुल्कों में तो आपको कोई जान ना पहचान, ठीक है। ये हिसाब है आपका, ठीक है। वो तो ना, अगर वो अब बातें मैं करूंगा ना सर, आप इधर खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बैठ जाऊंगा, खड़े होकर थक जाऊंगा तो मैं बैठ जाऊंगा। बात ये है, ठीक है, कि जिसको आप मसीह माओ दुमती नबी, ठीक है, हम तो एक अब सर ये जो कादियानी है, ठीक है, ये अब देखिए हर मुल्क में इनकी अपनी एक अलग जमात होती है, मतलब अपने कानून होते हैं इनके, ठीक हो गया। हमने बचपन से कभी नहीं सुना, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, झूठ हो गया, फ्रॉड हो गया, हमने हकीकत से कोसों दूर हो गया। हमने बचपन से कभी नहीं सुना था कि जी नबूवत जारी है, नबूवत जारी है। मैं कहता हूँ गुलाम अहमद के बाद कोई कितना भी सादी कमीन आ जाए, कोई कितना भी इनकी शिकों पे पूरा उतर जाए, कभी नहीं मानेंगे, ऐसे मुनाफिक हैं। ओ भाई मेरे, ओ भाई साहब, अगर तो तुसी खत्मे नबूवत ते गए हो ना, ते तुसी खत्मे नबूवत नूं छड़ के अजराए नबूवत अल गए हो। ये गल कान खोल के बिल्कुल अजराए नबूवत की तरफ नहीं गया, मैं बिल्कुल नहीं गया। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने अपनी अल्लाह को जान देनी है। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना बैठे, वो आज भी सच्चे नबी को मानते हैं, आज भी इस दिन में। पूछ लो इनसे, हल्फिया बयान दिलवा लो। अब वो पाकिस्तान में हो, बहरीन में हो, कनाडा में, अमेरिका में, ज़मीन में, चांद पर, अतारत पर, वो अलग बात है। आज भी इनसे पूछ लो हल्फन, इनको एक नहीं एक से ज़्यादा जो है अजदहा आपको निकल आएंगे इनके अकायद के। हाँ, नारा ख़त्म नबूवत का लगाते हैं। अगर आप ख़त्म नबूवत की वजह से गए हैं तो आप गलत जगह गए हैं। आप उन लोगों पर गए हैं, लोगों में गए हैं जो नारे ख़त्म नबूवत का लगाते हैं और अकायद अजराए नबूवत के रखते हैं। अच्छा, अजराए नबूवत करके सामने एक बात सुन लेना, आप तो सुन्नत वल जमात है, हनफी हैं, या जो भी हैं, एक एक करके आए सामने, हम तकाबली जायज़ा ले लेते हैं। ख़त्म नबूवत का परचम अगर किसी के हाथ में होना चाहिए तो वो मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब है और जमात अहमदिया है। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये हकीकत है। अजराए नबूवत ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਫੜਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲੀ ਟੌਪਿਕ ਲਤਾਇਫ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਤੀਫੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਈ ਕੀ अली की मुराद का मौजू है आज ब्रॉड का मौजू ये है कि आओ दोस्तों लंबी लंबी छोड़ें। हाँ जी, ऐसे ही है, ये कह रहे हैं जी जो पर्चा उठाया था मिर्जा साहब ने, मिर्जा साहब का एक हाथ ही टूटा। आओ मुनाफिकत के बुत तोड़े। अगर नारा पसंद है तो उसके मुताबिक अपने अकायद दुरुस्त कर लो। अगर अकायद पसंद है तो नारा दुरुस्त कर लो। केड़े हाथ जी से एक गल सुनो टोनी साहब तुसी बड़े मेरे मोहतरम मेरे प्यारे हो, एक गल सुनो। अगर नारा पसंद है कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद है तो उसके मुताबिक अपने अकायद दुरुस्त कर लो। परचम केड़े हाथ जी? अगर अकायद पसंद है तो उसके मुताबिक अपना नारा दुरुस्त कर लो कि अब ख़त्म नबूवत जिंदाबाद की ये जलालत क्यों, ये गुमराही क्यों? जब प्यार किया तो डरना क्या? अगर इंसान जिंदा हैं, सच्चे हैं, नबी हैं
तो नबूवत जारी टोनी साहब सुन लिया करो किसी और दी भी यार, सुन लिया करो ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਵਨ ਵੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਣ ਜੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੱਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਮੋਹਤਰਮ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸੋਚ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਟੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾਓ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਟੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਸੀ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਜਾਏ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵਾਂ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮਨਾਜ਼ਲ ਤੈਅ ਕਰੋ ਅੱਜ ਗੌਸ ਬਣੋ ਕੱਲ ਕੁਤਬ ਬਣੋ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੱਕਾ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਬਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੂਥੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੂਥੜੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਥੂਥੜੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਥੂਥੜੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੂਥੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥੂਥੜੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਥੂਥੜੀ ਚੋਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭੰਗ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਖੇਲੋ ਇਹ ਲੋ ਜੁਨਜੁਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦੇਵੇ 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਫਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਲਿਕ ਭਾਈ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਲਿਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ नहीं गुस्ताखी नहीं करो ब्रांड मलिक भाई एक एक करके सवाल रखो इन्हां दे अगे टोनी साहब इंशाल्लाह जवाब देंगे थोड़े बुजुर्ग ने गुस्सा कर जांदे ने मैं जज़ाकल्लाह सर इनसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि कृष्णा को नबी आप कैसे मानते हैं जी बिस्मिल्लाह जी टोनी साहब बस सिंपल सवाल सिंपल जवाब दें बिस्मिल्लाह ठीक है कृष्णा को जमात नबी कैसे मानती है ऐसे मानती है ऐसे नहीं बताए ना सर जी जवाब दें ऐसे मानती है ओ है चुटकी बजा के मलिक भाई कह रहे हैं ऐसे मानते हैं ऐसे किसी ने कोई मानते हैं
1,24,000 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਤਾ। 1,24,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ MDH ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਕੁਇਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੜੋ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚ ਕਰੋ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਚਲ ਯਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਲੀਲ ਆ। ਉਹ ਬਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1,24,000 ਕਮਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਭ। ਲਓ ਜੀ, ਨਬੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 1,24,000 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਤਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ? ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ कि जाहलों के सामने, झूठे बंदे की ये निशानी होती है कि जाहलों के सामने बड़ी लाफ गुजाफ मारते हैं। वो दामन पकड़ के पूछे लाओ कहाँ है सबूत, तो घुस जाते यहाँ से निकले थे। ए घुसना ए केड़ी दलील है? तुसी लिस्ट लै और ना विच ना होवे तो फिर सानू कहना बस जी नबी बन गया जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंज ते हर कुत्ता बिल्ला उठ के दावा कर देगा मैं नबी हाँ। दलील की है जी? लिस्ट लै आओ तुसी, ना मेरा ना होए विच तो फिर गल करना। ये तो पागलों का टोला, इन्हां नाल की समझाना तुसी इन्हां। सर इनमें तो इतने शिरक है ना कि